Hello, Namaste to all. Welcome to our channel Brain Booster Fueling Future Talents. And here we have done Unit 1 already, and 2 chapters we have covered from the unit. And today we are on the final chapter of the same unit, Unit 1. And 2 chapters which we have already done, they are the Bottle of the Dew and the Raven and the Fox. And today from the Unit 1, which is the Fable and the Folk Tales, in this unit we are doing the final chapter of this unit, which is Rama to the Rescue. Yes, so according I have provided an image, and see here we are able to in this picture it is very clear that the people who rescue us, who are they? The policeman, the doctor and the firefighter. These are the people who rescue us. What is the meaning of rescue? To save us. So all these three save us when we are in big trouble. Yes, policeman helps when any robbery happens in the house, or we are like if some thief is there, or some road accidents or whatsoever, that time to make proper decisions, police is helpful for us to rescue. Then the doctor is helpful because a doctor is known as God, है ना, भगवान का रूप माना जाता है डॉक्टर को. तो डॉक्टर हमारी मदद करता है जब when we are fighting with any disease, है ना, like in the COVID times, doctors have helped us, है ना, they have helped us to rescue our life, so many people's life, and they have protected so many families, right? And then the firefighters, they are very helpful because they rescue people from very big buildings from when they are caught by fire. So all these three are very helpful in rescue. Rescue is to save us. They are helpful to save us from different situations, right? So here also in this chapter we will come to know what is the story and why this is the name of the chapter, Rama to the Rescue. This story which we are going to do, it is a folk tale from तमिल नाडु, है ना. तो ये साउथ इंडियन स्टोरी है बेसिकली, और जो भी ये इसकी स्क्रिप्ट है, दिस इज़ रिटन बाय लुइस एम फर्नांडिस, है ना. ये इसकी स्क्रिप्ट राइटिंग है, जो स्टोरी लिखी है मीन्स इन्होंने, एंड जो भी ये इलस्ट्रेशंस है, इमेजेस हैं, इनमें जो एक्सप्रेशंस हैं, ऑल दीज आर गिवन बाय राम वारिकर. Okay, so let's begin the chapter. In a village one night. तो आप पिंक जो बॉक्स है उसमें आपको विजिबल हो रहा है दैट एक रात की बात है एक गांव के अंदर, है ना. तो विलेज की बात है और वन नाइट की बात है. So as you can see in the image, it is clear the words that तो ये क्या है, अंगड़ाई ले रहा है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी क्लियर हो रहा है ना. सो हस्बैंड एंड वाइफ हैं इसमें, द कैरेक्टर्स आर द हस्बैंड एंड द वाइफ, और हस्बैंड जो है वो अंगड़ाई ले रहा है. व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन. कोई बड़ा ही आज टफ डे था, बड़ा ही मुश्किल डे था, है ना, ऑफ आज मेरे लिए. एंड ही इज सेइंग दैट आई एम फीलिंग सो स्लीपी, है ना. तो व्हाट ही सेज दैट ही इज फीलिंग वेरी स्लीपी. And now as you see that he has just rested and his wife is having a dinner. Okay, and as you can see in the image very clearly that ears के पास में भी lines drawn है ना, जब वो अंगड़ाई ले रहा है उसमें lines drawn है, and their face expressions in particular you have to see that husband जो है वो relax mode में चला गया है, yawn कर रहा है ना. एंड वाइफ जो है वो बड़ी गौर से देखती हुई नजर आ रही है इन द सेकेंड इमेज टू ऑल ऑफ यू, राइट. यस.
Then in the next we see that what's the matter, what are you looking at. अब जब हस्बैंड ऐसे लेटा लेटा उसको वाइफ को देख रहा होता है तो उसकी नज़र जब वाइफ पे पड़ती है तो he looks at her that what she is looking at, so he's just asking that what are you looking at. So on this the wife points out, shh, to be quiet. She says the husband to be just quiet and listen. She just wants him to listen, pay attention that what she is looking at. Okay, somebody is trying to get in. Who is saying this? The husband is saying that someone is trying to get in. कोई तो है जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है. I think he has already got it. है ना. अब वाइफ क्या कह रही है, अरे भाई मुझे क्या लग रहा है कि कोई है नहीं, कोई आ चुका है, कोई तो है जो पहले ही अंदर आ चुका है. द नॉइस हैज स्टॉप्ड, क्योंकि आवाज़ जो है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है. बिल्कुल नो टाइप ऑफ वॉइस दे आर एबल टू, नॉइस दे आर एबल टू हियर. दैट्स वाई द वाइफ इज सेइंग मुझे लग रहा है दैट ऑलरेडी समबडी हैज गॉट इट, राइट. देन लाई डाउन, डोंट लुक. चलो लेट जाओ और बिल्कुल मत देखो अब इधर उधर. जस्ट लाई डाउन. इट्स अ थीफ. ही मस्ट हैव somehow गॉट पास्ट ड्रामा. है ना. तो क्या कह रहा है वो कि अरे ये तो कोई चोर लग रहा है ना. इट्स अ थीफ. वो कोई चोर लग रहा है कि अच्छा, तो ही मस्ट हैव somehow गॉट पास्ट रामा. है ना. जब रामा, तो रामा देखो पिंक बॉक्स में दे रखा है. रामा वॉज दी विलेज कोतवाल. कोतवाल कौन होता है? पुलिसमैन. तो गांव में जो पुलिसमैन है उसका नाम क्या है? रामा. सो अब वो कह रहा है कि अब तो ये कोई थीफ है और ये थीफ घर तक कैसे आ गया, बिकॉज ही मस्ट हैव सम हाउ गॉट पास्ट रामा. जब रामा वहाँ खड़ा था, निगरानी रख रहा है, वॉच रख रहा है वहाँ पे खड़ा होके, तो डेफिनेटली ये जो है कहीं से पीछे से घुसते हुए बचते हुए ये यहाँ तक पहुँच चुका है. कौन पहुँचा है? थीफ पहुँचा है. किससे बच के? रामा से बच के. थीफ कहाँ एंटर हो चुका है? इन देयर हाउस. Now the thief has entered. What should we do? तो wife is asking. Wife क्या पूछ रही है? हमें क्या करना चाहिए? On this the husband says, I'll tell you. Listen. तो अब इनका प्लान जो है वो शुरू हो गया है ना. और क्या कह रहा है हस्बैंड? मतलब अब उन्होंने हस्बैंड एंड वाइफ ने मिलके कोई प्लान बनाया है. बिकॉज वाइफ क्या पूछ रही है दैट व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए. इस बात पे वो कह रहा है लिसन, आई टेल यू. है ना. मैं बताता हूँ कि क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो. और ये जब उनकी बातें चल रही हैं, इधर चोर अपने खड़ा है. मीनवाइल मतलब इधर ये अपनी बातें कर रहे हैं और इस तरफ क्या हो रहा है? चोर खड़ा है. द थीफ इज स्टैंडिंग ओवर एंड व्हाट ही इज सेइंग, एंड लुक एट हिज फेस. इजंट इट वेरी फनी ऑल्सो? यस. वॉइसेस. सो ही इज़ वेरी हैप्पी. बड़ा खुश होते हैं ना अपन. ये जो फेस एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, लाइक चोरी करेगा तो इसके पास क्या क्या आएगा, वो चीज़ें पूरी इसकी आंखों में हैं. दैट्स वाई ही इज़ वेरी हैप्पी एंड दिस इज़ द एक्सप्रेशन. वॉइसेस, दे आर अवेक. अच्छा, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं. ये तो मतलब जगे हुए हैं. दे आर अवेक, दे हैवंट स्लेप्ट येट. I'll have to wait till they fall asleep. अच्छा, मुझे तो रुकना पड़ेगा जब तक उनको प्रॉपरली नींद नहीं आ जाती है. जब तक वो asleep मीन्स दे डोंट फील स्लीपी, जब तक उनको नींद नहीं आने लगती है तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे जगना पड़ेगा. I'll have to be awake. That is what थीफ भी अपना प्लान बना रहा है और हस्बैंड वाइफ भी अपना प्लान बना रहे हैं, राइट. आई वंडर वेयर दे हैव केप्ट देयर मनी. अब थीफ क्या कह रहा है? बड़ा मैं सोचा हूँ कहाँ इन्होंने अपने पैसे रखे होंगे इन्होंने, है ना. दैट इज़ व्हाट ही सेज. अब आप देख रहे हो थीफ कहाँ से एंटर हुआ है? दीवार में छेद करके, है ना. पूरा दीवार को तोड़ते हुए, है ना. बड़ा सा छेद करके, गड्ढा करके वो आया है दीवार के अंदर से. And I wonder where they kept their money, or this is the thought going on in his head. They are saying something. Perhaps they are talking about their
मनी। अच्छा, वो बड़ा गौर से सुन रहा है, कानों पे हाथ रख के सुनते हैं ना, ताकि क्लियरली सुनाई पड़ जाए कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। तो दे आर टॉकिंग, दे आर सेइंग समथिंग, कुछ तो है जो वो बात कर रहे हैं। परहैप्स, मुझे लग रहा है शायद तक, दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? अपनी मनी के बारे में। आई बेटर लिसन क्लोजली, मुझे लगता है मुझे थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, थोड़ा पास में जाके सुनना चाहिए। वॉट शुड बी नेम आर चाइल्ड, है ना। अब जैसे ही थीफ जो है वो कान लगा के सुन रहा है ना, तो क्या हो रहा है, ये लोग अलग ही टॉपिक पे अब बात कर रहे हैं ना। तो थीफ जब गौर से सुनने लगा तो उनको क्या सुनाई दे रहा है? व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, कि हस्बैंड एंड वाइफ क्या बातें करें, जिसमें वाइफ क्या कह रही है, दैट व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हमें हमारे बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए। इफ ही इज अ बॉय, विल कॉल हिम रामा। तो लड़का, दैट मीन्स हस्बैंड क्या कहता है कि अगर लड़का होगा तो हम उसे रामा बुलाएंगे, है ना। जब अब बच्चा होगा उसको हम रामा बुलाएंगे। देन रामा, तो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे। तो वाइफ इज सेइंग रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा नाम है। When he is in the house, I'll call out softly. जब वो घर में होगा तो मैं उसको softly बुलाऊंगी, बड़े आराम से बुलाऊंगी, है ना। I'll call out to him रामा रामा, बड़े प्यार से मैं उसको रामा रामा सॉफ्ट आवाज में बुलाऊंगी। थीफ जो है, थीफ का फेस देखा ना, कैसे वो थोड़ा गुस्सा भी है और परेशान हो रखा है। बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड, बट क्या होगा अगर वो घर में नहीं हुआ और वो पीछे होगा यार्ड में, गार्डन एरिया में, देन व्हाट विल यू कॉल हिम? देन आई कॉल आउट अ लिटिल लाउडर रामा रामा, मैं थोड़ा जोर से बुलाऊंगी। अगर वो पीछे होगा तो थोड़ा जोर से मुझे बुलाना पड़ेगा। एंड दिस इज द वे आई कॉल हिम। I wish they would stop this silly game and talk about their money instead, है ना। तो बिल्कुल गुस्से में आ रखा है और बोल रहा है that I wish they stop this silly game, मुझे बस इतनी इच्छा है, चोर की क्या इच्छा है, बस ये जो भी ये बकवास चीज़ें कर रहे हैं ना, ये जो गेम है इनका, ये सब वो बंद कर दे। एंड टॉक अबाउट देयर मनी। और चोर क्या सुनना चाहता है? बस पैसे के बारे में सुनना चाहता है, सो दैट ही कैन जस्ट स्टील एंड जस्ट रन अवे, एंड ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड देन, राइट। सो ये बस चाहता है कि वो मनी के बारे में बात करे। ओ रियली, अस्लीप एट लीस्ट, है ना। और सॉरी, और फॉल अस्लीप एट लीस्ट, है ना। या फिर उसको क्या चाहिए, या तो मनी के बारे में बात करें या फिर कम से कम सो तो जाएं, नींद तो आने लगे उनको, ताकि मैं मेरा प्लान एग्जीक्यूट कर सकूं। बट माय डियर, है ना, इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस, अरे भाई अगर लड़का ना तो घर में हो ना तो वो यार्ड में हो, बट इन द स्ट्रीट, और अगर वो गली में कहीं होगा, देन हाउ विल यू कॉल हिम, राइट। सो द ऑन दिस द वाइफ सेज, ओ देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली, फिर तो मुझे बड़ी ही जोर से आवाज देनी पड़ेगी। और कैसे आवाज देनी पड़ेगी? रामा रामा करके आवाज देनी पड़ेगी, है ना। तभी तो आवाज पहुंचेगी। और देखो, रियल में आवाज जो है वो रामा तक पहुंच चुकी है। एंड हु इज रामा हियर? रामा इज द थीफ, जो पुलिस कोतवाल है, सॉरी, रामा इज द पुलिस ऑफिसर, जो कि मतलब पुलिस कोतवाल बोला गया है, रामा इज द पुलिस ऑफिसर, है ना। पुलिसमैन है जो कि विलेज का इकलौता है, एक मीन्स वहाँ के एरिया की जो सिक्योरिटी है वो उसी के हाथ में है। सो ही इज अ ओनली वन रामा ओवर देयर। सो दैट्स वाई, अब होता है ना भीड़ में जब आपका कोई नाम लेता है तो मे बी दे आर कॉलिंग आउट टू समवन, बट क्योंकि वो आपका नाम है तो आप पक्का से टर्न ओवर करते हो। तो सिमिलर वे, जैसे ही पुलिसमैन को सुनाई देता है दैट रामा, एंड ही जस्ट टर्न्स, अरे ये तो मेरे नाम बुला रहा है कोई, एंड सी ही इज बैक टू हिज ड्यूटी। ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द एक्शन विच इज टू बी टेकन बाय हिम, कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम में दिखाई दे तो पुलिस व्हाट इट डज, इट जस्ट रन्स टू रेस्क्यू एनी वन हु इज इन
help. So now Rama is on his duty. Rama is to help because he is able to hear that someone is shouting out loud for help, as they are shouting his name, Rama, Rama. That is what he heard. So he just rushes, and then Rama, the village Kotwal, ran to the house from which he heard the name being called. अब जहाँ से, जिस घर से उसको आवाज़ आ रही थी रामा रामा उसके नाम की, उस घर की तरफ वो दौड़ता है. He runs towards that house, and now what he is able to see? Oh, हो, है ना? Oh, what he says? Some thief has dug this way into this house. अच्छा, कोई तो चोर है. देखो कैसे हाथ बांध के फुल इंस्पेक्शन मोड में पुलिस ऑफिसर इज स्टैंडिंग, है ना? That he's standing, that someone has entered from this hole, made this hole and entered into the house. That is what he uh, that is what he feels. अब उसको यही समझ पड़ रहा है कि कोई तो यहाँ से घुसा है. Now what happens, as soon as, जैसे ही उसको फील हुआ, पुलिस ऑफिसर डजंट लुक फॉर एनीथिंग कि गेट कहाँ पे है, खिड़की कहाँ से है, क्या नॉक करूँ, कैसे जाऊँ. ही इज जस्ट इन टू दिस होल. बस इस छेद के अंदर से ही वो खुद जाना चाहता है. दैट थीफ बच के नहीं निकलना चाहिए. पुलिस का मेन मोटो क्या है? टू रेस्क्यू द पीपल, एंड ही डजंट वांट कि उसकी थोड़ी सी भी लापरवाही की वजह से या टाइम लेने की वजह से थीफ जो है वो हाथ से छूट जाए. हाँ, एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर. थीफ इज वेरी हैप्पी. थीफ इज वेरी हैप्पी कि चलो फाइनली उनकी जो ये चटर पटर चल रही थी इतनी देर से, जो इतने डिस्कशंस चल रहे थे ना जाने किस टॉपिक पे, फाइनली कम से कम उन्होंने मनी के बारे में तो कुछ नहीं बोला है ना? दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट एनी मनी, बट स्टिल दे हैव स्टॉप देयर चैटर. इसका मतलब उनको नींद आने लगी है. दैट इज वॉट ही थिंक्स, एंड नाउ ही इज वेरी हैप्पी that they are asleep, and now he could steal and just move, right? Soon they'll go to sleep, and इतने में क्या होता है देखो, जैसे ही वो बस प्लान बना रहा होता है कि बस नाउ द वॉइस, नो नॉइस इज देयर एंड दे विल सून फॉल अस्लीप. अच्छा, अब जैसे होता है ना, नींद आने लगती है तो पहले तो आवाज़ें बोलना बंद कर दें सब आपस में, और फिर क्या होता है, मतलब थोड़ी देर में सबको नींद आ जाती है. तो द थीफ इज बीइंग वेरी हैप्पी कि चलो आवाज़ें तो बंद हो गई, थोड़ी देर में सब सो जाएंगे. तो देन द पुलिस हैज कॉट हिम. यू आर अंडर अरेस्ट, है ना? कैसे गर्दन पकड़ लिए उसकी, एंड हु इज सेइंग दिस? रामा इज सेइंग दैट यू आर अंडर अरेस्ट. तुम अब मेरी गिरफ्त में हो. यू आर कॉट बाय मी नाउ, एंड नाउ नो वन विल कम टू योर रेस्क्यू. मतलब कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, यही मीनिंग हुआ. बिकॉज द पुलिस हैज रेस्क्यूड. किसको बचा लिया पुलिस ने? दी हस्बैंड एंड वाइफ को बचा लिया है. बट जो थीफ है उसको नो बडी विल कम टू रेस्क्यू. इट्स रामा, ही हर्ड अस. तो द हस्बैंड इज वेरी हैप्पी. अरे वाह, ये तो रामा है. अरे वाह, ये है, इसने हमारी आवाज़ सुन ली. The plan worked. The wife is very happy that whatever we have planned, that plan has finally worked. We are saved. She is very happy क्योंकि इतनी जो सिचुएशन आई उनके सामने, घर में चोर है, चोरी कर लेगा, सामान ले जाएगा, बट दे डिडंट गेट फियर्ड. लास्ट मोमेंट पे भी वो बिल्कुल डरे नहीं. एंड दो ही वॉज स्लीपी, ही लेफ्ट ऑल हिज लेजीनेस, है ना? जो भी टायर्डनेस थी उसको भी उसने छोड़ा. तो देखा कैसे कोई मुश्किल का टाइम होता है तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, एंड वी हैव टू बी फोकस्ड ऑन व्हाट वी हैव टू डू, एंड अपॉन दैट वी हैव टू थिंक इन अ पॉजिटिव वे. चाहे सर्कमस्टांस कैसा भी हो, we have to think in a positive way that how we can protect ourselves only. कहते हैं ना, जैसे जो खुद की से रक्षा करता है भगवान उसकी रक्षा करता है, तो सेम है ना. खुद के लिए हम अगर सोचेंगे अच्छे से और प्लान करेंगे अच्छा, और खराब से खराब कंडीशन में, इन एनी वर्स कंडीशन, इफ वी आर
if we think properly, then definitely we are able to save ourselves. The man and his wife, uh, the man and his wife, by their cleverness, है ना, अपनी चालाकी से, cleverness डेफिनेटली उनके पास वो क्लेवर थे, बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस थी उनमें, एंड दे सेव देमसेल्फ फ्रॉम बीइंग रॉब्ड इज जो भी उनका सामान चोरी हो जाता, सब कुछ चोरी होने से उन्होंने बचा लिया, है ना. दिस वे, बाय देयर इंटेलेक्ट, आई वुड से, अपना दिमाग लगाते हुए दोनों ने अपना रेस्क्यू करवा लिया. किससे? फ्रॉम दी पुलिस कोतवाल, रामा. यस, रामा ने जो है वो सेव किया. हाउ दे प्लान एट द वेरी लास्ट मोमेंट दैट हाउ दे विल टॉक, व्हाट ऑल टॉक्स विल बी मेड बाय देम, सो दैट दे कैन मीन्स जो पुलिस वाला है उसका भी ध्यान इधर उधर कर सके, दे कुड डाइवर्ट हिज फोकस ऑल्सो, एंड दैट दे जस्ट जो थीफ था उसको भी उन्होंने फूल बनाया. थीफ को भी ये लगा कि अच्छा ये लोग क्या बकवास बातें कर रहे हैं, बट द थीफ नेवर कुड इवन इमेजिन टिल द एंड. मे बी कुछ दिनों बाद ही थीफ को समझ आए, बट टिल नाउ तो ही वॉज नॉट अवेयर दैट व्हाट दे वाई दे आर टॉकिंग ऑल दिस, दैट कैसे, क्योंकि ऐसा तो कौन ही करता है, ये कोई प्रैक्टिस करने की चीज़ नहीं है कि हम हमारे बच्चे को इस तरह से बुलाएंगे, जोर से ऐसे बुलाएंगे, धीरे से ऐसे बुलाएंगे. बट वाई दे वर टॉकिंग ऑल दिस सिली टॉक, ये सिली टॉक इसीलिए कर रहे थे बिकॉज दिस वॉज द पार्ट ऑफ देयर प्लान टू रेस्क्यू देमसेल्फ एंड टू कॉल आउट रामा फॉर हेल्प. अगर वो चिल्लाते हेल्प हेल्प, कोई बचाओ, या चोरी होने वाली है, या पड़ोस में जाके चिल्लाते कुछ करते, तो मे बी थीफ उनका कुछ नुकसान कर देता. बट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा पेशेंस के साथ में, थोड़ी क्लेवरनेस के साथ में जब उन्होंने डिसीजन किया हाउ टू सेव देमसेल्फ, एंड दे एग्जीक्यूटेड दिस प्लान, दे मेड द प्लान एंड देन एग्जीक्यूटेड इट, है ना. सो दिस वे दे सेव्ड देमसेल्फ. सो मॉरल क्या है स्टोरी का? फेबल एंड फोकटेल में हमने यही सीखा है कि इन स्टोरीज में क्या होता है, एक मॉरल होता है एट द एंड. तो मॉरल यही है कि कैसी भी कंडीशन आए तो वी हैव टू प्लान, वी हैव टू एग्जीक्यूट आवर प्लान, वी हैव टू थिंक ट्वाइस वॉट एवर वी आर डूइंग. We don't have to get hyper at the end. Okay, this is the moral of the story, and this comic is taken from the अमर चित्र कथा, है ना. अमर चित्र कथा है, ये एक इंडियन कॉमिक बुक है. इसके जो पब्लिशर हैं दैट इज ही इज मुंबई बेस्ड और फ्रॉम इंडिया, एंड द कंपनी वाज फाउंडेड इन 1967. ये जो कंपनी है ये फाउंड हुई थी इन द ईयर, एस्टैब्लिश्ड इन अ वे बाय अनंत पाई. अनंत पाई ने इस कंपनी की को एस्टैब्लिश किया इन द ईयर 1967. So it is a very beautiful story. Beautiful because it is conveying such a good message at the very end of the story. So hope you all like the explanation part, and hope you just understood the chapter very clearly. Just you, I don't think that you require any reading of the chapter, as through the explanation it is very clear, and you can just listen it once again. And if you like any part of my explanation, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much for watching.